Hello everyone. Hi, my name is Rashmi Pratap and I am here on behalf of iTokri to bring to you everything about Pedana Kalamkari. It is practiced by Mr. Pichuka Srinivas in Andhra Pradesh. He is going to join us soon and tell us in detail about this art which goes back many centuries. Till then, let me tell you, I'm editor of 30 States. 30states.com is a portal where we write a lot of feature articles on art, culture, and other issues. So we're just waiting for Sir to join. Once Mr. Pichuka Srinivas is here, we'll start. Mr. Srinivas, are you here? As you all know, Pedna Kalamkari is a craft that is practiced in Andhra Pradesh. But the biggest concern for this craft is fake products. Products which are not handmade. They are passed off as original handmade products, but they don't really, pass the test of being eco-friendly or being environment friendly. This is where Mr. Srinivas is different. He always ensures that all his products are eco-friendly, follow the traditional requirements that are there. We are waiting for Mr. Srinivas to join. Is Mr. Srinivas there? Hello. I'm waiting for Mr. Srinivas to come online. I think he's having some network issues. Sir, are you there? His network issues are better now. He's there. Srinivas sir, have you been able to join? Hello, sir. I think there is some network issue. He's been invited, but he's having some network problem there. Hello, sir. Hello. I've again sent him an invite. I think there is some network issue. Anyways, what is really unique about this craft? One, it is totally made. Oh, he's been able to join. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Can you hear Yes, ma'am. Srinivas, sir? Can you hear me? Varun, you can hear me, Varun? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And where is sir? I'm not able to see him. Sir is here? He will join in. Yes, Okay. he will join in 10 minutes, ma'am. Okay. So, Varun, why don't you tell us, how did you decide to come into this profession? It's because your family has been doing this, or
what exactly was the trigger? Because you've done your engineering, right? Yes, ma'am. I did my engineering. Actually, Engineering. In my third year, I saw some beautiful fabric while I was returning to home from college, ma'am. And I really like those fabrics, and I came to know that this is a sustainable craft form at that time. And then in the third year itself, I decided I will join my father after completing my BTech. So, do you work with him directly, or you look after marketing, sales, or have you learned the craft itself, the craft of making, the use of blocks, how blocks have to be maintained? Have you learned all that? Yes, ma'am. It took 2 years for me to learn all these basics and little bit about block making and block printing and the techniques, how they make colors, how they boil fabric and everything. अच्छा. तो ब्लॉक्स किस लकड़ी के बनते हैं वरुण? हर लकड़ी का तो ब्लॉक नहीं बनेगा, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ना वो Yes, लकड़ी. ma'am. ब्लॉक्स सिर्फ टीक वुड से बनते हैं, मैम, क्योंकि टीक वुड it doesn't bend over a period of time. Like अगर हम देखेंगे तो ब्लॉक ऐसा स्ट्रेट रहनी ये ब्लॉक है चाहिए, ना, ये आपका without इनका any. ब्लॉक. Yes, ma'am. थोड़ा हाँ हाँ आप देख सकते हैं. हाँ, Yes, ma'am. तो ये बेंड नहीं होता है. अगर हाँ मैम, ये बेंड नहीं होते. अगर कोई और वुड यूज करेंगे मैम, तो कॉन्वेक्स या कॉनकेव शेप जैसा बन जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. अच्छा. टू अवॉइड दैट वी यूज ब्लॉक मेकर्स, दे यूज ओनली टीक वुड मैम. तो ये एक ब्लॉक कितने साल चल जाता है? मतलब इसकी भी लाइफ होती होगी ना, फिर छपना कम हो जाता है या उतना शार्प लाइंस नहीं रहती, तो एक ब्लॉक कितने साल आप चला लेते हो? एक ब्लॉक करीब हम 2000 मीटर तक एक ब्लॉक को प्रिंट कर सकते हैं मैम. अच्छा. एवरीडे अगर प्रिंटिंग के बाद हम ब्लॉक को पानी से वॉश करते हैं मैम, उस समय ब्रश यूज करते हैं, लाइक सॉफ्ट ब्रश. अच्छा. उसमें से कभी कभी थोड़ा डैमेज हो जाता है मैम ब्लॉक को. अच्छा. तो उसके बाद ये ब्लॉक आर्काइव्स में चला जाएगा मैम, लाइक ओल्ड ब्लॉक्स कलेक्शन में चला जाएगा. तो तो वी उस कीप ऑल कलेक्ट ओल्ड ब्लॉक्स एट सम प्लेस. ओके, आपका म्यूजियम है ना, ऐसा कुछ आपने कलेक्ट किए हुए हैं? यस मैम. तो कितने कितने पुराने ब्लॉक्स हैं? प्रेजेंटली हमारे पास 20 ईयर्स के पुराने बहुत सारे ब्लॉक्स हैं मैम. और जब हमारे दादाजी ने स्टार्ट किया था उस टाइम का भी एक ब्लॉक अभी भी हमारे पास है. अच्छा. अराउंड 40 ईयर्स ओल्ड. ओके. तो ये ब्लॉक्स के बारे में मुझे पूछना था, ये ऑयल से इनको मेंटेन करते हैं क्या, किसी तेल में भिगा के रखते हैं, कैसे करते हैं? लकड़ी है ना, लकड़ी को इट नीड्स समथिंग ना. इसमें ब्लॉक बनने के बाद ये लोग ब्लॉक मेकर सेसमी ऑयल में इसको ब्लॉक को 3 या 4 दिन रखते हैं मैम, ताकि ये ब्लॉक जब हम पानी में वॉश करेंगे तो पानी ब्लॉक के अंदर ना जाए और ब्लॉक जल्दी खराब ना हो. इसीलिए वो लोग सेसमी ऑयल में रखते हैं, क्रूड ऑयल. तो ये डिजाइन नए नए आते रहते हैं कि जो पुराने डिजाइन है वो भी कंटिन्यू करते हैं आप लोग? नए डिजाइन बनाते हैं कि पुराने जो चल रहे हैं वो रिपीट होते रहते हैं? नए अगर कोई किसी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि उनका अपना ब्लॉक चाहिए तो नया ब्लॉक बनते हैं मैम. मोस्टली अभी ट्रेडिशनल कलमकारी वाला ब्लॉक्स ही अभी चल रहे हैं, सेल थोड़ा ज्यादा. ओके. ओके. तो क्राफ्ट की हिस्ट्री के बारे में वरुण ज्यादा नॉलेज है क्या, कि मतलब पापा से सीखा है कि कैसे ओल्ड, मतलब शुरू कैसे हुआ था, पहले क्या बनता था, अब क्या चेंजेस आए हैं? इसमें जब भी मुझे टाइम मिलता था, वी यूज्ड टू डिस्कस अबाउट क्राफ्ट हिस्ट्री मैम. मछलीपट्टनम में कैसा आया है, किसने शुरू किया था मछलीपट्टनम में, वो सब. पोस्ट इंडिपेंडेंस मैम, कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने पूरा इंडियन क्राफ्ट को रिवाइवल करने की मिशन ली थी. उन्होंने हर एक विलेज के बारे में जाना है जहाँ कुछ हैंडीक्राफ्ट थे. वैसा मछलीपट्टनम में उनको पता चला कि मछलीपट्टनम में ब्लॉक प्रिंटिंग कलमकारी बहुत फेमस है. देन शी केम टू मछलीपट्टनम एंड उन्होंने कुछ फंड्स दे के मछलीपट्टनम में एक सोसाइटी स्टार्ट किया था, बलियालगुडम सोसाइटी बोल. अच्छा. तो वो इंडिपेंडेंस के बाद स्टार्ट हुआ था बलियालगुडम सोसाइटी. उधर ब्लॉक प्रिंटिंग चलता था. ओके. एंड देन
कुछ शायद कुछ मार्केटिंग इश्यूज की वजह से लाइक अराउंड 60s या ने वो सीधा अच्छा सा फंक्शन नहीं हुआ। अच्छा। And then in 1970s, my grandfather started kalamkari in Pedana, Polavaram and Pedana villages. तो जब ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया तो इसकी मार्केट थी क्या उस टाइम पे? तो लोगों में अवेयरनेस नहीं होगी वो। वाज देयर अ मार्केट फॉर दिस क्राफ्ट? Actually, my grandfather used to produce fabrics and everything, ma'am, and वो swatches लेके चेन्नई जाके लोगों को एक्सप्लेन करते थे कि एक ऐसा क्राफ्ट है, इसका आप यूरोपियन मार्केट में अभी भी थोड़ा डिमांड है, तो used to explain everything and market करते थे। Okay. If I have to ask you what is really special about this craft, मतलब क्या है जो इसको और क्राफ्ट से अलग करता है? कलमकारी एक और तरह की भी होती है ना, मगर आपका कलमकारी कैसे अलग है? और ब्लॉक प्रिंटिंग भी पूरी इंडिया में होती है, तो स्पेशल क्या है ये ब्लॉक कलमकारी में? कलमकारी का स्पेशल ये मैम, हर ब्लॉक प्रिंटिंग हर एक जगह का अपना एक अलग मोटिव्स रहते हैं मैम। कलमकारी में मोस्टली फ्लोरल मोटिव्स यूज करते हैं मैम। ओके। और पूरा लाइक सस्टेनेबल क्राफ्ट फॉर्म है। जो कुछ भी मटेरियल्स हम यूज करते हैं, रॉ मटेरियल्स हो या कुछ कपड़ा हो, सब कुछ बायोडिग्रेडेबल। किसी भी तरह से ना मदर अर्थ को कुछ हार्म होगा या फिर कुछ जो कुछ भी क्राफ्ट पर्सन से काम करता है उसको कुछ हार्म नहीं होगा। एनी ऑफ आवर व्यूअर्स यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? आप क्राफ्ट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। एनी व्यूअर्स? कोई क्वेश्चन है? अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल। तो मैं ही आपसे पूछती हूँ जो मेरे मन में जो सवाल है कि फेमस आपने कहा टेम्पल डिजाइन थोड़ा फेमस है ना, टेम्पल डिजाइन फेमस है। और कलर्स में बताइए कि कलर्स कैसे बनाते हैं, या हाउ डू यू मेंटेन? दो क्वेश्चन है, एक तो कलर्स के बारे में बताइए, और आपका जो वहां पे इकोसिस्टम है, पानी का अल्कलाइन लेवल या मिनरल लेवल, वो प्रिंटिंग को कैसे इम्पैक्ट करता है, जो नेचुरल वहां क्लाइमेट है? कलर्स हर एक ग्राउंड वाटर, ये ग्राउंड वाटर कलमकारी के लिए सपोर्ट करते हैं मैम। पढ़ना में जो ग्राउंड वाटर इधर वाटर में जो कुछ भी मिनरल्स है, लाइक अगर हम कुछ येलो कलर बनाना चाहते हैं तो ऐसा 100 ग्राम पाउडर माइरोबलन पाउडर मिलाने से येलो कलर अच्छा दिखेगा। अच्छा। अगर कोई और जगह हम पानी ले आके लाइक करना है तो फिर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि उससे लाइक येलो कलर कैसा बनेगा उस सब। my father will join. Okay. Namaste, madam. Sorry for the late. Namaste, sir. No problem at all. No problem. Sir, I was asking him about colors and the mineral and the climate. उससे आपकी कलमकारी का कलर्स अलग ही आता है ना, वो पैन इंडिया वो कलर नहीं। Yeah. Can you? हाँ. Because of देखो अभी पिटकारी जो रहेगा आलम, वो आलम हम लोग का वाटर का हिसाब से हम एक्सपेरिमेंट करके मिलाना पड़ेगा। अभी मेरा कुआं का बोर का वाटर का लेके उसमें कितना पिटकारी मिलाने से परफेक्ट शेड्स आएगा। ओके। वो मेन थिंग है। नंबर 1 पिटकारी का वो तो मॉडर्न है, दैट इज पिटकारी मॉडर्न है। और दिस मायरबलम सीड्स आल्सो नेचुरल मॉडर्न है। ओके। वो कितना मिलाना है, हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी आवर्स वी हैव टू सोक, ऐसा होता है। और दूसरा बात तो ये है, जब भी प्रिंटिंग होगा वो कैनाल में लेके जाके धोना है। धोने से उसका जो प्रिंटिंग करने के टाइम में गौर गम यूज करता हमने, नेचुरल गम, गौर सीड्स, वो गौर सीड्स यूज करने से क्या होगा ना, वो गौर सीड्स यूज करने से उससे गम आता ना, वो गम निकल के बाहर चल जाएगा। ओके। वो गम
कुछ प्रॉब्लम नहीं, पानी में कुछ इफेक्ट नहीं होता। ये पिचकारी जो रहेगा ना वो डेवलप होना है। अच्छा। There is a- तभी वो लेके आके बॉईल करना है। ओके। अभी देखो पोमोग्रेनेट पील रहेगा वो 40 डिग्री टेम्परेचर में बॉईल करना है। ऐसा अभी मैडर रूट रहेगा वो 110 डिग्री ऐसा बॉईल करना है। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द मटेरियल। ओके। सबसे रंगेगा, अभी देखो कॉयर रहेगा, कॉयर से बॉईल करना है तो और हमने ज्यादा टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा। सर यहाँ पे हमारे व्यूअर हैं बिंदु तारा, शी इज आस्किंग हाउ डू यू सिलेक्ट द डिजाइन? डिजाइन्स हैव ऑब्वियसली इवॉल्व्ड ना, जो 50 साल पहले था वही डिजाइन तो नहीं चल रहा है, तो कैसे नए डिजाइन बनते हैं? कस्टमर रिक्वेस्ट करते हैं या आप लोग इनोवेट करते हैं? थोड़ा कस्टमर लोग रिक्वेस्ट करता है, थोड़ा कस्टमर लोग जो पुराना डिजाइन है ना कहाँ जगह एक तो लीफ रहेगा, वो लीफ निकाल के फ्लावर रखने बोलेगा, ऐसा मॉडिफिकेशन होता है, डिजाइन मॉडिफिकेशन होता है। जो ओरिजिनल डिजाइन थे सर वो सारे टेम्पल डिजाइन थे जब पहले होता था, दे वर मोस्टली टेम्पल डिजाइन्स। टेम्पल डिजाइन पूरा सर, इज देयर अ टेम्पल के ऊपर कार्विंग होता है ना, वो कार्विंग का मैंने आपको इसमें भेजा है, ग्रुप में रखा है। मेरा बेटा ने डेवलप किया, एक टेम्पल का फोटो खींच गया। अच्छा। वो आजकल क्या है ना, कंप्यूटर आ गया, वो इजी से दे बनाता है। अभी देखो मेरा आर्टिजन्स काम कर रहे, प्रिंटिंग कर रहे। ये आफ्टर बॉइलिंग सेकंड कलर प्रिंटिंग है। अच्छा। फर्स्ट ब्लू कलर, इंडिगो ब्लू का प्रिंटिंग कर रहे, दिख रहे? Yes sir, दिख रहे हैं। Block printing. I hope our audience can see how it's a very laborious process. हाथ से सब किया जाता है। वो ये बहुत पतला कपड़ा है, स्कार्फ है। एक बार प्रिंट करता है वो कपड़ा ब्लॉक से साथ आ जा रहा है, देखिए। अच्छा। ऐसा फैब्रिक प्रिंट करने में ये प्रिंट होता है, मायरपालम ट्रीटेड के ऊपर ये प्रिंटिंग होता है। ओके। और इसका अंदर 3 कलर आएगा। अच्छा। एक दिन में तो कितना कलर करेगा? एक दिन में 3 कलर करेगा, बाकी कल काम होगा, कैसे करते हैं? नहीं, मैं आपको सैंपल के लिए बोला है। देखिए ऐसा प्रिंट करता है। अच्छा। 3 कलर मैंने एक ही दिन नहीं होगा। ओके। बाकी कल ये पहले ऐसा प्रिंट करता है ना। हाँ, ये 30 मीटर तक प्रिंट कर सकेगा सुबह से। ओके। एक आर्टिजन 30 मीटर तक दिन में प्रिंट करता है कपड़ा। हाँ। तो सर इन सबको सिंगल कलर। हाँ, ट्रेनिंग सर इनको अपने से नहीं, उन लोगों में बाहर से आता है आर्टिजन जो है ना, रेगुलरली एक जगह नहीं रहता है। बहुत थोड़ा जन रहता है। इन लोगों बाहर कहाँ काम करके आएगा। आने के बाद मैं पूछता है मेरे को क्वालिटी ऐसे चाहिए। अच्छा। मेरे को क्वालिटी एकदम परफेक्ट, मिसप्रिंट नहीं होना है ऐसे। ये मेरा स्टिचिंग यूनिट है। अच्छा। अभी आइटोग्री का बैग सीता है। अच्छा, ये आइटोग्री के बैग्स बनते हैं। आइटोग्री का शोल्डर बैग है ना। हाँ, देखिए सारा मास्टर टेलर का अभी तक नहीं है। यू कैन सी राइट। Okay, now somebody is asking, sir, how many days does it take to ready? One of our viewers is asking, कितने दिन में एक कपड़ा, जैसे मान लीजिए उसमें अगर 6 कलर है या 5 कलर है, तो वो 2 दिन में तैयार होता है छपके? नहीं होता है, पूरा प्रोसेस शुरू से होने तक नियर 15 डेज मिनिमम चाहिए। देखो ये मैडम, प्रिंटिंग हुआ, हाँ, होने के साथ धोने का नहीं होगा। अच्छा, सूखना चाहिए। हर एक प्रोसेस को मिनिमम 24 आवर्स वी हैव टू कीप। ओके। क्योंकि ना अभी प्रिंट करके कैनाल में लेके जाके 2 दिन से नहीं होगा। मिनिमम ईच प्रोसेस वी हैव टू कीप 24 आवर्स, अदरवाइज
we can't, it is not possible to get the colors. तो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं ना कि एक दुपट्टा या साड़ी बनाने में कितना दिन लग जाता है। पहले कपड़ा धोया जाता है, फिर उसपे प्रिंट होता है, सूखता है, फिर वॉश किया जाता है, कलर सारे नेचुरली बनते हैं, तो काफी लंबा प्रोसेस है। सर, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ओरिजिनल एंड फेक पेडना कलमकारी? वो फील हाथ से पकड़ने से, वो कपड़ा का मालूम होगा, स्मेल करने से मालूम होगा। ये मेरा बॉइलिंग का ये है। अच्छा, यहाँ पे बॉईल करते हैं, कलर ड्राई बनाते हैं। बॉयल यहाँ पर करेगा बॉइलिंग। ये पूरा क्या है ना, कापर से बनाया वाला। कॉपर से? कापर। यस सर, कॉपर। हाँ, कापर से ऐसी होता है। तो इसमें आप कलर, लॉकडाउन में ना, इसके अंदर काम नहीं, बॉइलिंग करने में वॉशिंग जाने नहीं होता है, तो उसके अंदर पूरा डस्ट आ गया। ओके। जब भी हम वॉशिंग जाएगा ना, व्हीकल घूमेगा ना, तभी वॉश करने होता है। ओके। तो सर, आपका मार्केट इंडिया में और ओवरसीज कैसा है? इंडिया में अवेयरनेस है इस आर्ट के लिए, और ओवरसीज कैसा कस्टमर रिस्पॉन्स है? पहले मेरा है, पहले मेरा गाड़ी से मेरी बर्गडोल मान है लेसिन अमेरिका का, ओवरसीज का। वो मैडम से मैं बहुत बिजी था, और ज्यादा क्वांटिटी नहीं, लेकिन आई एम बिजी एंड हैप्पी। तभी करने के टाइम में मेरे को आया है, नितिन साहब ने फोन किया है, गंगाधर बोल के एक ब्लैक मेकर है ना, उससे। अच्छा। अभी लोकल में खाली आइटोकरी से कर रहे नितिन साहब से, तो उसी का माल है, पैक करने शुरू कर रहा है। सर, आइटोकरी से जो सामान लेता है, बहुत लोगों को फोन करता है मेरे को, पसंद आता है, एक पीस चाहिए। मैं नहीं कर सकेंगे ना। तो व्यूअर्स, आप देख लीजिए, इंडिविजुअली कॉल मत करिए सर को, आइटोकरी के थ्रू ही ऑर्डर करिए, क्योंकि वो इंडिविजुअल ऑर्डर नहीं लेते हैं। हाँ, क्योंकि ना, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। मैं तो पूरा दिन ये पूरा देखना पड़ेगा, कौन क्या कर रहे, कैसे कर रहे, क्या प्रोसेस हो रहे, वाचिंग करना। अगर वाचिंग नहीं करेगा ना, मैं अपना बिजनेस देखने के, उसका पार्सल बना के इसका पार्सल बनाने में टाइम लगने से मैं क्वालिटी नहीं आएगा। सर, एक व्यूअर हमारे पूछ रहे हैं कि क्या आप पेंटिंग्स भी बनाते हैं, कलमकारी पेंटिंग्स? थोड़ा बनाता है, बहुत थोड़ा। मैंने एक विलेज में जो बनता है, कभी चाहे तो उन लोगों में बनता है। क्या सर? विलेज में कभी चाहे तो छोटा टुकड़ा बनता है, लेकिन बहुत टाइम लेता है। अच्छा, पेंटिंग में ज्यादा टाइम लगता है। सर, आपका ट्री ऑफ लाइफ काफी फेमस पेंटिंग है ना, एक ट्री ऑफ लाइफ जो आपने बनाया है। हाँ, और सर, ये बेस बहुत आपका फेमस है। हाँ, बेस आपका कॉटन ही रहता है कि आप सिल्क वगैरह पे भी काम करते हैं? मैं बिल्कुल सिल्क का ऊपर बिल्कुल नए काम नहीं करूंगा, क्योंकि ना उसमें कलर नहीं आता है नेचुरल का। और दूसरा बात यह है, कॉटन से लाइनन पे बहुत सुपर क्वालिटी फैब्रिक कलर्स आएगा। कॉटन और लिनन, लाइनन, कॉटन बाय लाइनन, वो लाइनन के ऊपर के रहेगा ना, कलर्स बहुत ब्राइट आएगा। ओके सर, और एक व्यूअर पूछ रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं कि असली और फेक में एक डिफरेंस है कि स्मेल आती है फैब्रिक से, है ना? सो व्हाट काइंड ऑफ स्मेल इज दैट सर? आई थिंक सम नेटवर्क इशू एट हिज एंड. Sir, can you hear us? Yes, madam. Sir, our viewers are asking what kind of smell comes from the fabric? जो ओरिजिनल फैब्रिक है उसका स्मेल कैसा आता है? कलर्स का होता है, कैसा होता है?
कलर्स ओरिजिनल कलमकारी का हाँ, स्मेल कैसा रहता है उसका? स्मेल कुछ नहीं रहेगा। अच्छा। अगर डुप्लीकेट कलमकारी का आपको पकड़ने से प्रिंट जो जगह है वो उधर फील अलग रहता है, जो प्लेन रहेगा ना उधर पकड़ने से फील अलग रहता है, और उसका स्मेल में किरोसिन का बाइंडर का स्मेल आएगा। सर आपका फैमिली और थोड़ा दूसरा बात यह है, यस सर, अभी देखो मेरा सन बोलता है आपका हल्दा फ्लावर से हल्दा बनता है बोल। अभी वो हल्दा फ्लावर है पर केजी नियरली 450 रुपीज पर केजी। तो उस 1 केजी से कितना कलर बन जाता है सर? 30 लीटर्स आता है। 30 लीटर्स बनता है 30 लीटर्स और 30 लीटर्स केजी में कितने मीटर फैब्रिक को प्रिंट कर सकता है 30 लीटर्स? वो नहीं बोल सकता मैडम, क्योंकि ना डिपेंडिंग ऑन डिजाइन। अभी डिपेंड अपॉन डिजाइन से रहेगा। वही उसी का जगह में TJLL बोल कर आएगा 50 रुपीज में लाने से, 50 रुपीज का TJLL लेने से, उससे और उसका अंदर थोड़ा कुछ का पत्ता डाल कर बॉयल करता है, तो वो सस्ता पड़ता है, मोर देन 100 मीटर आएगा। सर आपका जो वरुण ने बताया कि ब्लॉक प्रिंट का आपके पास कलेक्शन है पुराना काफी, तो उसमें फैब्रिक डिजाइन भी है, पुराने फैब्रिक्स भी आप कलेक्ट करते हैं कि ओनली ब्लॉक्स? ओनली ब्लॉक्स मैडम, ओनली ब्लॉक्स। सो दीज ब्लॉक्स आर नो मोर यूजेबल कि हम इन्हें यूज कर सकते हैं? दे आर लाइक, और दे आर टोटली लाइक आफ्टर दे आर नॉट यूजेबल देन यू पुट देम इन द म्यूजियम? हाँ, वो विल पुट इन द म्यूजियम। ऐसे करता है। सर हाउ मेनी आर्टिजन्स डू यू वर्क विथ? यू गिव एम्प्लॉयमेंट टू पीपल राइट? नियरली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नियरली 60 पीपल। 60 पीपल। तो इन सबको आप ट्रेनिंग देते हैं शुरू से? फ्रॉम द बिगिनिंग से, कहीं किधर भी एक्सपीरियंस होने से भी इधर आने के बाद पूरा ट्रेनिंग देना ही पड़ेगा। जो बाहर जो काम होता है ना, वो काम इधर करने से फायदा नहीं है। प्रिंटिंग का बहुत केयर लेना है, प्रिंटिंग करने के टाइम में मिस प्रिंट नहीं होना है, और ट्रे जो रहेगा ना, प्रिंटिंग का ट्रे परफेक्ट रहना है। ओके सर, iTalkery के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? लास्ट ईयर वाज पेंडेमिक आल्सो, a lot of people had, what's been your experience with iTalkery? iTalkery से अच्छा है, चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उन लोगों में बहुत काम दे रहे, मैं करने नहीं सकता क्योंकि ना मेरा वर्क नहीं हो रहा। सर योर सन विल कंटिन्यू, वो आगे ये काम कंटिन्यू करेंगे आपके बेटे? 100%। ओके, 100%. Can you tell us a little about your family history? How your father came into this profession, because he had a textile business, right? First, my father, he is the one of the partner in one handloom firm. Okay. Handloom firm. There is five members partners. My father, a little bit educated, he used to marketing, he used to visit frequently to Mumbai, all the metropolitan cities. Once he went to Mumbai, one of his friend asked Subaya, I need kalamkari share. Okay. He is doing sarees business handloom. He thought, please show me the design. I mean pattern of the handloom share. He think it is handloom. Okay. No, Subaya, it's not handloom, kalamkari. What kalamkari here? My father asked. My father's friend, he laughed. Subaya, this is kalamkari making in Machilipad. Okay. They told the address, Balyalgudem Cooperative Society. It was started in 1954. Or something. No, 49 something. Okay. Kamala Devi Chattopadhyay, madam ne, madam
got to this handicrafts, Indian handicraft. Sir, when did you join the family business? Myself? Yes, sir. Since my childhood, I am in this work only. After my father passed in 1983, then I stopped my education and working with my other family members, with my elders. Sir, then your apart from your son, any other family member works with you? No. No? No. Sir, how has COVID impacted business? Are you seeing that people are buying less, or COVID has had a negative impact, or how has it been? Totally affected, but not. I can't say the selling thing, because online sales are very fine here, even in USA. But the main problem is I cannot produce the fabric. I cannot do the manufacturing because of the COVID. Because washing and some process we have to go outside to the river. The government not allowed to go any vehicle. Any vehicle. Yes, yes. Every washing we have to go. Every trip we have to go nearly 70 kilometers to River Krishna. Okay. Okay. That is 70 kilometers far from here. So now how? मतलब सर कह रहे हैं कि कपड़ा धोने के लिए 70 किलोमीटर कृष्णा नदी पे जाते हैं, है ना? जाना है। हाँ, तो लोकल कैनाल में अगर हमने वॉश किया है तो मतलब ही नहीं है। तो वो कलर थोड़ा थोड़ा तो वॉश कर सकता है, लेकिन लोकल कैनाल में जो रहता है पेस्टिसाइड्स यूज करता है सब फार्मर्स, वो पानी इसका कैनाल का अंदर आएगा। ओके। तो वो कृष्णा, वो पानी, हाँ, कृष्णा रिवर वाटर के पास प्योरफुल। तो सर अभी लॉकडाउन में कैसे करते थे? अभी तो नहीं जा सकते थे बाहर, तो फिर प्रिंटिंग करके सब ऐसे स्टॉक रख रहे। कभी गवर्नमेंट परमिशन देगा, पुलिस परमिशन देगा, तभी हम बाहर जाएगा, तभी धो सकता है। क्योंकि वॉशिंग भी हम रेगुलर नहीं जाता है, हफ्ता को एक ट्रिप होता है। बट पेडना में लोकल कैनाल में डेली वॉश करता है, डेली थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स वॉश करता है, वो अलग प्रोसेस है। लेकिन हम लोग का प्रोसेस के लिए इधर वॉश करने से काम ना आएगा, और दूसरा है वो केमिकल कलर हम आपका कपड़ा को पकड़ जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर कह रहे हैं कि 70 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पे जाके वहां पे वॉश करते हैं कपड़ा, उसका रियल कलर आने के लिए। लोकल जो इनकी वाटर बॉडीज हैं, दे आर पोल्यूटेड, दे हैव केमिकल्स एंड ऑल, so they cannot wash these eco-friendly clothes in local water bodies. So that is a lot of effort, sir, that you are putting in this craft. Anything else you want to share? Any audience? आपके किसी के question है? कोई पूछना चाहता है सर से? Yes sir, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? You want to share anything with our audience? Anything else, sir, which I've left? No? Okay, we have no more questions, and I think we can now close this session. Thanks a lot, sir, for sparing time. आज पहली बार हमने ये पूरा प्रोसेस देखा, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, प्रिंटिंग होती है, पानी का हमें पता नहीं था कि इतना दूर जाके होता है। तो it's been a very enriching session, and thanks a lot for sparing time, sir. Thank you. Thank you, sir. Thanks. Namaste, madam. Thank you very much. Thank you. Great opportunity. Thank you. Thank you.